میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, آج بھی ملٹیپل سٹوریز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں, لیکن ساری پاکستان تحریک انصاف, عمران خان صاحب کے صاحبزادوں اور عمران خان صاحب کے گرد گھوم رہی ہیں, اور علیمہ خان صاحبہ بھی اس میں یقین طور پر اس کا حصہ ہیں. سب سے پہلے عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے, جیل کے اندر بات چیت کی ہے صحافیوں سے. فرماتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے مجھ سے ملنے کے لیے, وہ کسی احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں ہوں گے. یہ زندگی میں پہلا سچ بولا ہے عمران احمد نیازی صاحب نے. ویسے تو مجھے ان سے سچ کی کبھی بھی توقع نہیں ہے, میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ وہ کہیں کہ اللہ ایک ہے تو یہ بات مان لیں, اس کے علاوہ کوئی بات ان کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو سچ بولا ہے عمران خان صاحب نے, تو مجھے بھی جو ہے وہ آن اسکرین آ کر یہ بات جو ہے وہ کرنی پڑی, کیونکہ مجھے آج غلط ثابت کیا ہے عمران احمد نیازی صاحب نے. ویسے تو میں پہلا جو نمبر تھا ہندوستان پاکستان کے سب سے بڑے جھوٹے کا, وہ عمران خان صاحب اپنے نام کر چکے تھے, لیکن پھر ان کو ٹف ٹائم دیا اور ان کو پیچھے چھوڑ دیا نریندر مودی نے. تو آج مودی نمبر 1 پر ہے جھوٹوں میں, اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو مطلب چیز کر رہے ہیں اور بڑے قریب ہیں ان کے اس ٹائم بھی. لیکن آج سچ بول لیا تو یعنی اب ان کا اور نریندر مودی کا فاصلہ بڑھتا جائے گا. خان صاحب فرماتے ہیں جی کہ میرے بیٹے جو ہیں وہ کسی احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں ہوں گے. تو یہ سچ کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ویزا اپلائی کر دیا ہے. اب پاکستان میں جب آپ آن لائن ویزا اپلائی کرتے ہیں تو 3 کیٹیگریز کے ویزے کسی غیر ملکی کو پاکستان آنے کے لیے مل سکتے ہیں. وہ 3 کیٹیگریز کیا ہیں؟ پہلی کیٹیگری ہوتی ہے ٹورسٹ کی, دوسری کیٹیگری ہے بزنس کی, اور تیسری کیٹیگری ہے وزٹنگ فیملی کو. اب ان تینوں کیٹیگریز کے اندر کسی ایک کیٹیگری کے اندر بھی احتجاج میں یا سیاسی عمل کا حصہ بننے کی اجازت نہیں ہے. سو لہٰذا اس میں ایک ڈکلیریشن ہوتا ہے جب آپ ویزا فارم فل کرتے ہیں, تو ان کو پاکستان میں سیاست کا جب ویزا لے کر آئیں گے تو کسی قسم کی سیاسی عمل کا وہ حصہ نہیں ہو سکتے. اور خان صاحب نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے بیٹے احتجاجی تحریک کا حصہ بنیں, کیونکہ جب احتجاجی تحریک کا حصہ ہوتے ہیں تو پولیس آگے سے مزاحمت ظاہری باتیں کرنے والوں کے اوپر آنسو گیس کے شیل مارتی ہے, ڈنڈے برساتی ہے, ٹھنڈا پانی پھینکتی ہے. تو خان صاحب کے بچے کوئی عام بچے ہیں؟ کوئی عام جو ہے ورکر کا بچہ ہے؟ عمران خان کیوں چاہیں گے کہ ان کے بیٹے جو ہیں اس اذیت سے, اس مشکل سے گزریں جس سے گزرنے کے لیے غریب لوگوں کے بچے جو درکار ہیں ان کے پاس جو ہے وہ اویلیبل ہیں. تو لہٰذا ہر مرتبہ 1000-1500 جو کارکن یوتھ جو ہے وہ گرفتار ہوتی ہے اور جیلوں میں سڑتی ہے, تو عمران خان صاحب کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے بیٹے جو ہیں اس مشکل کے وقت میں اس مشکل گھڑی سے گزریں. سو لہٰذا عمران خان صاحب نے زندگی کا پہلا سچ بولا ہے. بیٹے جو ہیں وہ والد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, اور واقعی سگے بیٹے ہیں عمران احمد نیازی صاحب کے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں 3 سال ہو گئے اپنے والد سے نہیں ہماری ملاقات ہوئی. یعنی وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جیل انتظامیہ ہے یا حکومت ہے وہ ملاقات کی اجازت نہیں فراہم کر لی, اس لیے وہ بے بسی کے عالم میں, لاچاری کے عالم میں ملاقات نہیں کر پا رہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ شاید وہ عمران خان صاحب کو توڑنا چاہتے ہیں, وہ بریک نہیں ہو رہے. تو جو عمران خان صاحب کے صاحبزادوں نے بات کی ذرا ملاحظہ کریں. He's in a very small cell. He has to be in there 22 hours a day at the moment. He's only allowed out of his cell for 2 hours a day at the moment. They've restricted access. Books were kind of his only solace. They've kind of restricted access to the books that he wants. He's had access to his lawyers and his personal physician and his family members restricted. I'd like to add as well, the conditions in there are awful. As in, there have been 10 people who have died in that prison of hepatitis C, and that's because of unsanitary conditions. Equipment like razors and things that haven't been cleaned properly. So, it's very, very clear to see their awful conditions. He's washing himself in water that isn't just unfiltered, it's visibly murky. It's apparently discolored. So, the hygiene levels in there are pretty abhorrent. اچھا, اب یہ بات تو وہ کر گئے,
लेकिन बात ये है कि बेटा जी आप वीज़ा अभी आपने अप्लाई किया है, पाकिस्तान आपको आने का इरादा ही नहीं था, तो आपकी मुलाकात कैसी होती? को आपके पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन की जो है वो पावर्स तो नहीं है कि आप वहाँ से ही जो है वो गायब हो गए सीधा पाकिस्तान में जेल में आके अपने वालिद से मुलाकात कर लें। तो मुलाकात के लिए वीज़ा अप्लाई करना है आपने, वीज़ा अप्लाई करा कर वीज़ा लेकर आपने पाकिस्तान आना है। कभी आपने टिकट कटाया हो, पाकिस्तान आए हों, डाला जेल के बाहर आपने वेट किया हो, वालिद से मुलाकात करिए, तब तो आपकी लाचारगी हो सकती है। जब ऐसा काम आपने किया ही नहीं है तो फिर मजलूम बनने की नाकाम कोशिश क्यों कर रहे हैं? यानी एक देखिए एक झूठा तासुर कायम करने की कोशिश करते हैं। अब अगली बात देखें जी कि बेटे फरमाते हैं उनको उम्मीद किससे है जी? बेटों को उम्मीद है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से और अमेरिका से कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करके इमरान खान साहब की रिहाई को मुमकिन बनाएं। तो इसको डील नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये डील नहीं है तो ये क्या है? क्या ये हकीकी ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए जो है वो इमरान खान साहब के बेटे प्रेसिडेंट ट्रंप से जो टेलीविज़न चैनल के ऊपर आकर जो है अपील कर रहे हैं? यानी कौल और फेल में इस जमात की और लोगों के तजादात देखे और इमरान खान साहब का राब्ता है अपने बेटों के साथ। और आज तो खैर ख़ुद भी मान गए हैं कि जी मैंने बेटों से मेरी बातचीत हो गई है और मेरी जो है वो अखबारात भी मिलना शुरू पड़ी हैं और 3 चैनल्स भी वो देख रहे हैं। लेकिन इमरान अहमद नियाज़ी साहब जो हैं वो बेसिकली अभी उनके लिए उनकी रिहाई के लिए उनके बेटे प्रेसिडेंट ट्रंप से उम्मीदें वाबस्ता करके बैठ गए हैं और वो कह रहे हैं कि उनका इन्फ्लुएंस है और वो बात करेंगे तो उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। तो जब उनकी रिहाई के लिए वो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है वो सहूलतकारी चाह रहे हैं तो ये डील नहीं तो उसको क्या तारीफ़ करूं मैं? और डील नहीं मांग रहे तो क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं कि डट के खड़ा है कप्तान। ये बेटे क्या फरमा रहे हैं ये सुनिए ज़रा। What's your message for President Trump? Because he, probably of all world leaders right now, he might be able to affect real pressure on this situation. Do you have a message for him? Well, yeah. I mean, if anyone can make a difference, he can. We spoke to Richard Grenell, and he was a big advocate of my father. He publicly tweeted in favor of our father. We know that Trump has a great relationship with our father. We know, and vice versa. They had great conversations when they were both in office, and they seem to have mutual respect for one another. If Trump was able to make a statement or in any way speak to the establishment over there to get our father released, I know he's one of the few people who can. So of course, we would love to kind of have a conversation with him or hope for some help from him or support. अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब के जो बेटे ने कोशिश करके वालिद की रिहाई मुमकिन करवाई जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, अमरीत का दौर था, जब एक मिलिट्री डिक्टेटर मुल्क के ऊपर रूल कर रहा था, तो उस टाइम जो है वो रिहाई हुई तो वो उसका ताना आज तक दिया जा रहा है। वो आज तक जो है वो ताना दिया जाता है कि नवाज शरीफ ने डील कर ली। भाई फ़र्क ये है कि इमरान खान साहब जो है वो डील हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई डट के नहीं खड़े, उनको डील मिल नहीं रही, कोई उनका गारंटर बनने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब के बेटों ने जब इंटरनेशनल पावर्स को अप्रोच किया, बिलखुसूस सऊदीज़ को, तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी थी और उन्होंने नवाज शरीफ साहब की ज़मानत जो है वो ली, गारंटी ली। तो आपकी गारंटी लेता कोई नहीं है खान साहब। तो प्रॉब्लम इज़ दिस, तो इनके साहबजादे जो हैं वो अब अमेरिका खेल रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई ग़ुलाम हैं। ये मंजन बेचा और अब जो मंजन बेचा यानी अपना ही थूक फेंक कर उसको चाट रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान अहमद नियाज़ी के साहबजादे। यानी आप देखें कि लोगों ने यहाँ पर गाड़ियों के पीछे एब्सोल्युटली नॉट, हकीकी आज़ादी, क्या क्या लोग लिखते रहे, लेकिन इनकी असलियत ये है। अच्छा, जो एंकर थे पियर मॉर्गन, उन्होंने जब सवाल किया जी और उसने कहा जी कि आपके वालिद साहब तो करप्शन के केसेस के अंदर जो है जेल के अंदर हैं, तो इसके ऊपर जो इमरान खान साहब के साहबजादों ने लफाजी का सहारा लेते हुए, झूठ का सहारा लेते हुए और बिल्कुल हक़ाइक़ के मुनाफी बात जो है ना वो गोल मोल करके जवाब दिया। भाई करप्शन आपने की अलकादर केस के अंदर, करप्ट प्रैक्टिस और करप्शन आपकी साबित हो रही है। अदालत ने जनाब जो डिक्लेरेशन दिया आपके ख़िलाफ़। And Suleiman, he's been convicted in Pakistan of corruption charges, as has his wife. What is your response to that?
Well, I think anyone who knows him knows that he's not a corrupt person. You know, if he was truly corrupt, he's been offered multiple times to join one of the established parties, and he could have just enriched himself that way, as they have. Instead, he chose to start his own party 30 years ago. Took him 20 years to even be taken seriously in politics. And not, you know, he could have lived a comfortable life, like I've said, off the back of his cricket career. The whole reason that he started his party in the first place was to fight the kind of rampant corruption that that Pakistan has suffered from since its inception, really. So, yeah, he's. I think anyone who knows him, even people within the establishment who are accusing him of this. नासिर जावेद राना साहब की जो जजमेंट है वो पढ़ लें, वो कितनी ज़बरदस्त जजमेंट है, उसमें कोई झोल वगैरह नहीं है. अब इमरान खान साहब के साहबजादे जो हैं वो झूठ का सहारा लेते हैं, हक़ाइक़ के मुनाफी बात करते हैं. और बात क्या कर रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं जी, अगर उन्होंने करप्शन करनी होती तो 30 साल पहले कर लेते. भाई अगर 30 साल पहले, एक मिनट के लिए बात मान लेते हैं, उन्होंने करप्शन नहीं की, 4 साल पहले कर दी है, तो क्या उनको जो है वो छुट्टी मिल जानी चाहिए कि 30 साल पहले करप्शन नहीं की उन्होंने? ये कोई बात है करने वाली? तो यही बेसिकली लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जो है इनके में सलाहियत मौजूद है. और ये अपने बिल्कुल वालिद के सगे बेटे हैं, ये बिल्कुल हक़ाइक़ के मुनाफी झूठ का सहारा लेकर जनाब इमरान खान साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और यही बातें कर रहे हैं. ये बातें ज़रा इनकी किस अंदाज में झूठ बोलती हैं और किस कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं, ये मुलाज़ा करें. I mean, the problem is he's kind of defenseless in there, isn't he? He's on his own, he's defenseless. It's a very vulnerable place for him to find himself. Yeah, completely. It's horrible thinking about him in that cell. When you hear the stories about it just getting worse and worse, what really was quite painful to hear was recently hearing about him losing a lot of weight. You know, the heat over there is unbearable, and we know he doesn't have any air conditioning, he doesn't have any fan. And so he's stuck in this small solitary confinement cell in, you know, blazing heat. And losing weight is just not a good sign for someone who's in their 70s, who's been shot recently 3 times. You know, the health risks are massive. So there's so many ways for them to plot some kind of assassination. They have complete control, and it's extremely distressing. अच्छा, अब इन्होंने झूठ बोले तो उनके झूठ के ऊपर जो जेल सुप्रिटेंडेंट हैं उनको यानी अब्दुल गफूर अंजुम साहब को वज़ात जारी करनी पड़ गई. उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस का कोई मरीज़ जो है वो जेल के अंदर मौजूद नहीं है. और जिन 10 हलाकतों की, जिन कैदियों की हलाकतों का दावा कर रहे हैं इमरान साहब के शहजादे, वो हलाकतें हैं ही कोई नहीं. अब जेल में जो बंदा आता है, जो बंदा जाता है, उसका हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड होती है. कोई मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई भी आए और जाए और उसका जो है वो रिकॉर्ड मौजूद ना हो. तो उसका रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है, और रिकॉर्ड जो है वो ये साबित कर रहा है कि मोहतरम इमरान अहमद न्याजी साहब के जो साहबजादे हैं वो वाकई इमरान खान साहब के सगे बेटे हैं, और वो मतलब कहते हैं ना कि शाही झूठे हैं, और वो झूठ उनका जो है वो साबित हो रहा है. अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जी. अब हमने पहले इमरान खान साहब की बात की, फिर कासिम सलमान की बात की, और अब हम बात करते हैं इनकी फुप्पी की. अब फुप्पी जो है, वैसे फुप्पियाँ तो काफ़ी हैं. एक तो ये अलीमा खान साहिबा जो हैं वो फुप्पी हैं कासिम और सलमान की, और जमाइमा जो है वो टेरियान जेड वाइट की फुप्पी है शायद, तभी उनके पास रह रही है, क्योंकि अलीमा खान के पास तो रह नहीं रही, तो वो मेरे ख्याल से जमाइमा उसकी फुप्पी लगती है. अलीमा खान साहिबा फरमाती हैं कि जी मुझे मुमकिन है कि आज गिरफ़्तार कर लिया जाए, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हैं 26 नवंबर वाले मुकदमात के अंदर, और इसमें ना सिर्फ उनके बल्कि 65 लोगों के जो है वो वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं. और ये इसी के हवाले से उन्होंने ख़दशे का इजहार किया. ये आप इनकी बात सुनें. लेकिन 5 तारीख को मंगल का दिन है, वो हमारी मुलाकात का दिन होता है, और मुलाकात में हमें यहाँ आना है. हम तो यहाँ आएंगे इंशाल्लाह. अगर आज पटियाला के बाहर बैठी हूँ, मेरे अरेस्ट वारंट्स हैं, आज इन्होंने सुनने में तो ये आ रहा है कि गिरफ़्तार कर लेंगे. अगर गिरफ़्तार नहीं करते तो इंशाल्लाह
मंगल के दिन आएंगे। इमरान खान की मुलाकात जो जिस दिन होती है हम उसके लिए ज़रूर आएंगे यहाँ पर। अच्छा, अलीमा खान साहिबा हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो रहनुमा है उनसे गुज़श्ता रोज़ बात हुई। देखिए अलीमा खान साहिबा ने ये बात तो की है, लेकिन अलीमा खान साहिबा की जो है ना वो बैकिंग बड़ी मजबूत है, वो बड़ी ताकतवर लोग हैं जो उनकी बैकिंग के ऊपर मौजूद हैं। लिहाजा उनके जो साहबजादे हैं शेर शाह, वो भी 9 मई के अंदर उसी जगह पर मौजूद थे जहाँ पर हसन न्याजी साहब मौजूद थे, लेकिन हसन न्याजी साहब को तो सज़ा होगी मिलिट्री कोर्ट से, लेकिन शेर शाह को किसी ने उंगली तक नहीं लगाई। वो पाकिस्तान से बाहर भाग गए थे, फिर अब वापस पाकिस्तान आके बैठे हुए हैं। तो लिहाजा अलीमा खान साहिबा गिरफ़्तार होंगी, मैं इस हवाले से कोई हतमी बात नहीं कर सकता, क्योंकि उनके कहते हैं ना कि साईं बड़े तकड़े ने। अगली इनमें बात ये है जी कि अलीमा खान साहिबा ने ही साथ मिशाल यूसुफ ज़ई साहिबा का जो टिकट मिला उनको सेनेट के अंदर, उसको इंसाफ के मुनाफी करार दिया है। ना सिर्फ उन्होंने दिया बल्कि उनके प्रॉक्सीज़ के ज़रिए उन्होंने इशारा किया होता है ना, तो उनके प्रॉक्सीज़ भी यही बात करते जो है वो सुनाई दे रहे हैं। और ये गुफ्तगू जो है अहमद न्याजी साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं वो भी सुने, और अलीमा खान साहिबा इस मुतालिक क्या कह रही हैं ये बात सुने। मिशाल यूसुफ ज़ई उनको मुबारक हो, वो सेनेटर बनी है और उन्होंने साथ कहा है कि मुझे मेरा इनाम मिल गया है। क्या आपका इनाम ये सेनेटर बनना है? आपका लीडर जेल में पड़ा है 2 साल से और आप कह रही हैं कि हमें इनाम मिल गया मेरा। शर्म नहीं आती आपको? आपके वर्कर शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, जेल काट रहे हैं, और आप कह रही हैं कि हमें मेरा इनाम मिल गया। शर्म से आपको मर जाना चाहिए इस बात पे। आपका लीडर जेल में पड़ा है, हमारा इनाम तब होगा जब हमारा लीडर रिहा होगा, जब हमें हकीकी आजादी मिलेगी। छोटी छोटी चीजों पे अपनी कीमत लगाई हुई है आपने, हमारी कीमत सिर्फ इमरान खान की रिहाई है। दूसरी बात, फिर जान को मिशाल यूसुफ ज़ई सेनेटर बन गई है, पहले उनके खिलाफ पार्टी में भी रिजर्वेशंस थी, आपने भी उनके मुतल्लिक बहुत कुछ कहा, लेकिन अब ये मैं ऐसे लोगों पे अपना टाइम नहीं जाया करती। अगर आपने कुछ पूछा होगा तो मैंने बता दिया होगा, लेकिन हमने इनके ऊपर टाइम नहीं। क्या पार्टी के अंदर पेशावर में कोई और लोग काबिल नहीं थे मिशाल यूसुफ ज़ई को सेनेटर बनाया? आपका अपना ओपिनियन इस पे क्या कहता है? मेरा ओपिनियन पूछना चाहते हैं जी। मेरा ओपिनियन है कि इंसाफ होना चाहिए था, मेरिट पे होना चाहिए था, और मेरिट में और बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं, ये तो मैं बिल्कुल कहूँगी। अब देखें जी, ये बात है कि यकीनी तौर के ऊपर सेनेट के इलेक्शंस के अंदर इन्होंने इंसाफ के मुनाफी टिकट दिए हैं, लेकिन कौन सा टिकट उन्होंने इंसाफ के ऊपर उतर कर आज तक दिया है? हमेशा यहाँ पर अकरबा परवरी भी होती है, यहाँ पर पैसे की चमक के आगे जो है इनकी आंखें जुदला जाती हैं। देखें मिर्ज़ा अफरीदी हो जाएं, वो टिकट क्या मेरिट के ऊपर था क्या, या दीगर टिकट्स जो हैं वो मेरिट के ऊपर हैं? यहाँ पर सिर्फ बातें हैं जी। ये लोग जो है वो जिसका हाथ पड़ गया वो टिकट ले गया, यहाँ पर वर्कर की कोई कदर नहीं है। सेनेट के उम्मीदवारों के अंदर जो है वो काफ़ी लोग ऐसे मौजूद थी, ख़वातीन मौजूद थी जो टिकट के शायद मिशाल यूसुफ ज़ई से ज़्यादा हकदार थी, लेकिन उनको किसी काउंटिंग में ही नहीं लेकर आए। इमरान खान साहब भी उनको जो है कंसिडर नहीं करते, बात करते हैं मेरिट की पार्टी के अंदर टिकट्स की तकसीम के हवाले से, लेकिन कोई मेरिट नहीं है। और मैं इस बात पर बड़ा खुश हूँ कि मेरिट नहीं है, क्योंकि अब यही उनको जो है भुगतना है। अगली आखिरी बात मैं ये करूँगा जी कि 5 अगस्त की जो तहरीक को नुक्ता अरूज पर पहुँचाना था, तो वो तहरीक के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। मैंने पूरे मुल्क के अंदर जो है वो टेलीफोन कॉल्स की हैं और मैंने पूछा है कहीं पर कोई चीज़ हलचल हो रही हो। कोई छोटे छोटे जो ना 2-4 कन्वेंशन मैंने देखे हैं, वो भी लोगों ने फेसबुक्स के ऊपर लगाए हुए हैं, कुछ लोगों ने लिंक्स शेयर किए। जब मैंने कुछ साफ़ियों को फ़ोन किया तो वहाँ से जो मकामी लोग थे उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, तो कोई जी इनके तारीख शहरी कोई नहीं है। केपी के अंदर जो है थोड़ा बहुत ड्रामा करेंगे और इसके अलावा इनके पल्ले कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि देखें हालिया दिनों में जो तहरीक इंसाफ के कायदीन को सज़ाएँ हुई हैं, उसके ऊपर किसी एक जगह आपने पॉलिटिकल रिएक्शन देखा है? यार आप MNA थे, आप MPA थे, आप सेनेटर थे, आप यानी अपने एक नेशनल लेवल के अपने आप को लीडर करार देते हैं,
4 بندے جناب آپ کی سزا کے خلاف اپیل نہیں کر جو ہے وہ احتجاج نہیں کر رہے, اور یہی ہوا عمران احمد نیازی صاحب کی جو تھی سزا کے اوپر 14 سال کی سزا ہوئی, ایون KPK میں بھی جو ہے وہ کوئی احتجاج نہیں ہوا تھا, تو ان کے اوپر خاک ہونا تھا. بہرحال یہ اپنا نااہلیوں کا سفر جو ہے یہ کامیابی سے جاری رکھے ہوئے ہیں, آئندہ آنے والے دنوں میں مزید نااہلیاں بھی ہوں گی. لیکن سب سے بڑی جو ہے نا مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو 5 اگست کی تحریک کو نقطہ عروج پر لے کر آنے کے حوالے سے اس کو خود لیڈ کرنے کا دعویٰ کیا تھا, تو اب یہ کیونکہ ٹھس ہو چکا ہے پروگرام, یہ فلاپ ہو چکا ہے, تو وہ ذمہ داری کسی تنظیم کے اوپر, کسی صوبائی عہدیدار کے اوپر, کسی کے اوپر نہیں ڈال سکتے. یہ ذمہ داری عمران خان صاحب نے خود لیڈ کرنی تھی, تو عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے ذمہ داری ہے. یہ کہہ رہے تھے نا ان کے بیٹوں کو احتجاج میں شرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے, ان کا باپ ہی کافی ہے, تو باپ جی اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے, اعلان بھی آپ کا تھا, تو آپ کے لوگوں کے تو جو پسینے چھوٹے ہوئے ہیں اور گرفتاریاں جو ہیں وہ دے نہیں رہے, سزائیں ان کو ہو چکی ہیں, مفرور ہوئے ہوئے ہیں. تو عمران احمد نیازی صاحب جو کہ اڈیالہ کے چانسلر بھی ہیں, نااہل بھی ہیں, اور عمر ایوب صاحب جو کہ قائد حزب اختلاف تھے اس پہ قومی اسمبلی کے اندر, اور شبلی فراز صاحب جو کہ سینٹ کے اندر قائد حزب اختلاف تھے, اور ملک احمد بچر صاحب جو کہ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تھے, آج یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ نااہل بھی ہو چکے ہیں, اور آج کی تاریخ میں اگر چاہیں تو یہ چاہ کر بھی کونسلر تک منتخب نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ نااہل ہیں, اور نااہل شخص کو جو ہے وہ پارٹی عہدہ بھی نہیں رکھ سکتا. تو یہ وہ فیصلے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ وقت کا جو پہیہ گھما, کبھی کسی اور کے اوپر جو ہے وہ خوشیاں مناتے تھے, نواز شریف صاحب کو کبھی کہتے تھے مجرم نااہل نواز شریف, تو آج مجرم نااہل عمران احمد نیازی, آج مجرم نااہل عمر ایوب اینڈ سو آن. یہ جو ہے وہ وقت جو ہے وہ کسی کا نہیں رہتا, وقت ہمیشہ بدل جاتا ہے. میں نے تو عمران خان صاحب پر تنقید ان کے اقتدار کے دنوں میں بھی کی, اور میں آج بھی اس کو جاری رکھے ہوئی ہوں, کیونکہ میرے نزدیک ان کی سیاست انتشار کی سیاست ہے, اور میرے نزدیک وہ کوئی ملک کی خدمت نہیں کر رہے, بلکہ پاکستان میں یعنی قوم کو تقسیم کیا ہے, لوگوں کے اندر ڈویژن پیدا کی ہے, اور ملک میں افراتفری کا ماحول پیدا کیا ہے. آج کے یہی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.